শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী চৈতন্য কবিরাজ গোস্বামী দ্বারা রচিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 83 তাৎপর্যে সেকেন্ড লাস্ট অনুচ্ছেদ থেকে শুভারম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 7.83 মিডল পারপোর্ট অনওয়ার্ডস। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ কিছু মূর্খ লোক আমাদের উচ্চস্বরে কীর্তনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। जैसे चांद काजी ने भी बाधा दिया ना महाप्रभु का कीर्तन। কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রভাবে যিনি যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হয়েছেন, তার সান্নিধ্যে অন্যরাও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করে। কিন্তু मैंने देखा कितना लोग कीर्तन वीर्तन में थोड़ा बहुत लाजुक है। लाजुक माने बहुत शाय हो के, लेकिन जब देखता है सब भक्त लोग कीर्तन करता है तो देखा आप लोग ने, वो भी आस्ते आस्ते कीर्तन करने लगता है ना। ऐसे बहुत होता है। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ শক্তি ছাড়া হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা প্রচার করা যায় না। ভক্তদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের ফলেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবানের দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাচ্ছে। ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করার সময়, কীর্তন করার সময় এবং নৃত্য করার সময় আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা মনে পড়ে যায়। এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই কীর্তনকারী তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হন। হরি बोल। भगवान उधर प्रेजेंट रहता है और हम लोग उनका एसोसिएशन करता है जब ये हरिनाम होता है। जय जय। एभावेई भगवानेर संगे संपर्क युक्त। हम लोग जो भागवत कथा हो रहा है, इतना भक्त लोग का समागम हो रहा है ना। आप लोग को मालूम है बीच बीच में कितना देवी देवता लोग भी आता है ये सब सुनने के लिए। महाप्रभु का कथा चल रहा है, चलो वो लोग जाते हैं। हाँ, गौरांग महाप्रभु हमारे प्रभु का कथा चल रहा है, चलो सुनते जाते हैं। हाँ, बहुत भक्त लोग समागम हो रहा है, चलो जाते हैं। तो उधर बहुत हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत देवी देवता सब उपस्थित हो जाते हैं। जहां जहां भगवान और महाप्रभु का कथा हो रहा है, माने सर्वोच्च कथा, सब पहुंच जाते हैं। এভাবেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে শ্রী ভগবত ভক্ত ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত হন। এভাবেই নিরন্তর देखिए आस्ते आस्ते सेवा करने में युक्त होता है। पहले कीर्तन कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ा उनको गमला पकड़ा देता है, बोलता माता जी थोड़ा सर्विंग कर दीजिए। आज तक जीवन में कभी सर्विंग नहीं किया, लेकिन यहाँ भक्त लोग को प्रसाद परोस देता है ना ऐसे बहुत लोग। हाँ, पकड़ा दीजिए, बाल्टी पकड़ा दीजिए, माता जी थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, करेंगे। এভাবেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বৃত্তিকে বলা হয় ভাব, এবং ওই স্তরে তিনি নিরন্তর বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। যিনি এই ভাবের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন না। অন্য সমস্ত চিন্ময় লক্ষণগুলি যথা রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি যখন এই ভাবের স্তরে যুক্ত হয়, তখন ভগবত ভক্ত ধীরে ধীরে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেন। हरि बोल। देखिए सेवा के माध्यम से आस्ते आस्ते ये अष्ट सात्विक विकार आता है और फिर आस्ते आस्ते व्यक्ति कृष्ण प्रेम लाभ करता है। श्री कृष्णের দিব্য নামকে বলা হয় মহামন্ত্র। নারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত অন্য সমস্ত মন্ত্রগুলিকে কেবল মন্ত্র বলা হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত এই মন্ত্রকে বলা হয় মহামন্ত্র। और कोई महामंत्र है नहीं। এগুলো কি দর্শন করাচ্ছেন, কুকুর না গরু? ছাগল? ঠিক আছে ঠিক আছে,
থ্যাংক ইউ। 84 নম্বর শ্লোক। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ। বলিए कोई। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম পরম পুরুষার্থ, যারও আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। যার আগে তুমি তুমি চারি পুরুষার্থ। देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब क्या समझना पड़ेगा? क्या हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं क्या चुपचाप रहने का? मैं कुछ पूछा उत्तर दीजिए। ये कोट किया गया है, पूरा उत्तर दीजिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको कहीं किसी ग्रंथ से कोट किया। अपना गुरुदेव को कोट कर रहा है कविराज गोस्वामी। बोला था ना, गुरु ने मेरे को बोला मूर्ख है, हाँ तुम सिर्फ जप करो ना और ज्यादा कुछ करो मत। हाँ तो एक गुरुदेव अभी भी बोल रहा है, और ये बात प्रकाशानंद सरस्वती को सुना रहे हैं गौरांग महाप्रभु। ठीक है अशोक प्रभु, घूम भेंगे से। तो गुरुदेव ने और क्या बोला? धर्म, अर्थनैतिक उन्नति, काम भोग और मुक्ति, चारटी होच्छे चतुर्वर्ग। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार क्या है? चार पुरुषार्थ। किंतु पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमेर तुलनाय এই চতুর্বর্গ পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণর মতো অর্থহীন। कृष्ण प्रेम के सामने ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? कुछ नहीं है, तृण जैसा है, तुच्छ चीज है, कुछ नहीं है। यस माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यहाँ गुरु नित्यानंद प्रभु है ना? अरे कृष्ण, ना 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 ना, क्या आप लोग बनारस में सुना रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती अभी साहब। चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है, कौन इतना कुछ बोला हमको भी मालूम नहीं है। नहीं नहीं, कृष्णराज कविराज गोस्वामी। सुन लीजिए, मैं समझ गया आपका प्रश्न। अभी महाप्रभु बोला कि मेरे को कोई उनका गुरुदेव मूर्ख बोला है, तुम सिर्फ नाम जप कर। अभी है ये गुरु है कौन? ये काल्पनिक गुरु है या सचमुच कोई बोला होगा, हमको मालूम नहीं। इसका कोई उल्लेख नहीं प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। ठीक है, हमको तो हमारा पर्सनल यही व्यू है कि प्रकाशानंद सरस्वती को उद्धार करने के लिए महाप्रभु ये सब बोल रहे हैं। मेन इंटेंशन इज टू उद्धार, इसीलिए ये कोई महाप्रभु को मूर्ख बोलेगा? महाप्रभु का गुरु कौन कौन था? ईश्वरपुरी था, गंगादास था और केशव भारती था। तो इन लोग थोड़ी महाप्रभु को बोलेगा तुम मूर्ख हो, तुम सिर्फ जप करो नाम, ऐसे बोलेगा कोई? नहीं। सत्ता बोलेगा? नहीं, कोई नहीं बोलेगा ऐसे। प्रभु उनको मतलब बता, उनको उद्धार करने के लिए ये सब हमको लग रहा है मेंटली कॉन्कॉक्टेड गुरु बनाकर ये सब। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती को मेनली उद्धार करने के लिए। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु आउट ऑफ हम्बलनेस उनको ये करना बता रहे हैं कि हम उनको बोले। यस, तात्पर्य। अच्छा, ये चार पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, ये सबको आता है ना समझना? ये सब समझ रहे हैं ना? ये पंचम पुरुषार्थ के सामने ये चार पुरुषार्थ फीका है, कुछ नहीं है। ओके, तात्पर्य। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करार समय धर्म, अर्थनैतिक उन्नति, कामभोग एवं चरमे जड़जगतेर बंधन थेके मुक्ति, এই জড় বাসনাগুলি করা উচিত নয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন যে জীবনের চরম প্রাপ্তি হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। প্রেমা পুমর্থ মহান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মর্ত মিদম। আমরা যখন ভগবত প্রেমের সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তুলনা করি তখন আমরা বুঝতে পারি যে এইগুলি বুভুক্ষু বা জড়জগৎ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষী এবং মুমুক্ষু বা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী। এদের কাম্য হতে পারে, কিন্তু ভগবত প্রেমের প্রাথমিক স্তরের ভাব
প্রাপ্ত হয়েছে যে ভক্ত, তার কাছে এগুলি অত্যন্ত নগণ্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হচ্ছে জড়জাগতিক স্তরের ধর্মের 4টি পর্যায়। समझ में आया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? ये जड़जागतिक दिस इज मेटेरियल लेवल में है ना। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে ধর্ম প্রজ্জিত কৈটবত্র। এই চারটি জড় আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত ছল ধর্ম श्रीमद् भागवत संपूर्ण वर्जन करा হয়েছে। कैटव, जितना भी कैटव धर्म है सबको वर्जित किया गया है ना श्रीमद् भागवतम में। दूसरा श्लोक में धर्म प्रज्जित कैटव, कल मोहन प्रभु बता रहे थे। কেননা শ্রীমদ্ ভাগবতে কেবল জীবের সুপ্ত ভগবত প্রেম পুনর্জাগরণের শিক্ষা দান করা হয়েছে। ओके, अमलम पुराणम, कुछ भी ये सब नॉनसेंस चीज नहीं है, एकदम प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहे? ভাগবত গীতা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রাথমিক পাঠ এবং তাই তার শেষ কথা হচ্ছে সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একম শরণম ব্রজ। সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। ভগবত গীতা 18:66। এই পন্থা অবলম্বন করতে হলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমস্ত ধারণা ত্যাগ করে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। समझ में आ रहा है मामूजी माताजी? এই ভগবানের সেবা চতুর্বর্গের অতীত। इसका अर्थ क्या है? এই ভগবানের সেবা চতুর্বর্গের অতীত। क्या अशोक प्रभु बोलिए, क्या है इसका अर्थ? ये चारों पुरुषार्थों से भी है। चतुर्वर्ग, यस पंकज प्रभु। ये चतुर्वर्ग, ये जो धर्म काम उसके लिए बोल रहे। ভগবত প্রেম হচ্ছে জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই তা জীবাত্মা ও ভগবানের মতোই নিত্য। এই নিত্যত্বকে বলা হয় সনাতন। हरि बोल, हरि बोल। ভক্ত যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন তখন বুঝতে হবে যে তিনি তার জীবনের চরম লক্ষ্য খুঁজতে পেতে সক্ষম হয়েছেন। তখন ভগবানের दिव्य नामेर प्रभावे, अभी भक्त जब कृष्ण भक्ति में आया है उसको ये भी सोचना चाहिए कि वो बहुत जीवन भटक 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 के फाइनली भगवत धाम का द्वार पा गया है ना। ये कृष्ण भक्ति में आना तो ये भगवान का धाम का द्वार ही है ना, माने ये जड़ जगत से मुक्ति का निकलने का ही रास्ता है ना, और तो कोई रास्ता है नहीं। তখন ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে সবকিছুই আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়। সব আপনি आप इसे नाम जप करिए अच्छा से, निरंतर नाम अपराध रहित। এবং ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে থাকেন। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो अंतिम पैरा में जो हमने पढ़ा अपनी ভগবত প্রেম হচ্ছে জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীবাত্মার ভেতরে যে ভগবত প্রেম সুপ্ত আছে সেটা জাগরিত হলে এইটাই হচ্ছে তার স্বাভাবিক স্থিতি। এবং भगवत प्रेम होच्छे जीवात्मार स्वाभाविक वृत्ति, माने जीवात्मार भगवान को प्रेम करना, ये दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी। भगवान को प्रेम करना ये जीवों का नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देता है, पानी का क्या है पंकज प्रभु? पानी का तरलता, ठंडापन, ठंडा नहीं, दो देता है, फ्लूइडिटी और शुद्धता। हाँ, शुद्धता ना, शीतलता, 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 आई डोंट रिमेंबर शीतलता था या नहीं। जैसे आग का प्रभुपाद बताते हैं उष्णता और उज्ज्वलता, वैसे ही जीवों का भगवान के प्रति प्रेम इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी। मंदिर बना दीजिए, लोग ऐसे ही आएगा भगवान को दर्शन करने, प्रणाम करने, आपको बुला कर लाना नहीं पड़ेगा। তাই তার জীবত্তা ও ভগবানের মতোই নিত্য। এই নিত্যত্বকে বলা হয় সনাতন। অর্থাৎ এটা বরাবরই থাকবে, এটা কি বলে
मैंने हाँ, ये नेचुरल टेंडेंसी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण बलराम मंदिर का स्थापन किया था वृंदावन में, तो श्रील प्रभुपाद ने एक भक्त को बुलाया, फॉरेनर भक्त को, और बुलाया, देखो ये देख रहे हो तुम, पूरा हॉल पूरा भरा हुआ है, हम लोग किसी को बुलाया नहीं, लेकिन ब्रजवासी लोग देखा जब एक नया मंदिर खोल रहा है कृष्ण बलराम का, सब ऐसे ही आ गया। क्योंकि अपना स्वरूप के बारे में श्रवण करना लोगों का हक है, इट इज द बर्थ राइट। उसके लिए कोई इनविटेशन कार्ड नहीं चाहिए। फिर भी तो हम लोग क्लास में इतना बार अनाउंस किया, प्लीज आइएगा, सबको लेके आइएगा, सबको लेके आइएगा। अपना स्वरूप के बारे में सुनने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए? आ जाइए बस, क्या बुलाना पड़ेगा, क्यों व्हाट्सएप करना पड़ेगा फोटो, ऐसे आ जाइए। अगला श्लोक 85। फिर भी हम देखा बहुत भक्त लोग कल मिस हुआ, नहीं आया। मनीषा माता जी, इंद्रानी माता जी, बबीता माता जी। बबीता माता जी का जिन मैंने गलती किया, उनको सेवा देने से आएगी, वो पानी हाटी से प्रसाद का सेवा दे देते तो आती है, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ आई वो, हाँ वही गलती किया। हाँ, फिर हमने देखा अशोक प्रभु एकदम कोई नहीं आया। 85 नंबर श्लोक, लेकिन बहुत लोग आया, ऐसा नहीं बाकी लोग तो आया, बहुत आनंद हुआ। तो सब आइए, इसका लाभ उठाइए। इतना हरि कथा लाइव हो रहा है, मोहन गोविंद प्रभु का एकदम लाइव सानिध्य पा रहे हैं, इसका फायदा उठाइए। हाँ बोलिए। प्रभु जो कल प्रभु स्टार्टिंग का जो चीज समझा रहे थे, वो हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, तो वो कल ही जो अच्छा से समझ पाए, भागवतम और वो सब मिला के प्रभु बताए कैसे कैसे वो चीज वहीं कनेक्शन कितना सुंदर प्रभु ने श्रवण करा। तीनों बुक्स, भागवतम, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, फिर ये चैतन्य लीला में भी चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, तीनों का कनेक्शन, एवरीथिंग टू गुड। 85 नंबर श्लोक। पंचम पुरुषार्थ प्रेमा नंदामृत सिंधु। पंचम पुरुषार्थ प्रेमा नंदामृत सिंधु। मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कय। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कय। আজ্ঞে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়। ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয়। প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ। প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তে উপজায় লোভ। কৃষ্ণের চরণ প্রাপে উপজায় লোভ। প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়। तो गुरुदेव ने और क्या बोला? কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দে, কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো, তার তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আনন্দ এক বিন্দুর মতো নয়। সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে সুপ্ত ভগবত প্রেম পুনর্জাগরিত করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। তোমার চিত্তে সেই প্রেমের উদয় হয়েছে, তাই তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। গুরুদেব ने बोला इसे महाप्रभु को। কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাব হচ্ছে দেহ ও মনে চিন্ময় ক্ষোভের উদ্রেক করে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় লাভের প্রতি अधिक থেকে अधिकतर लोभের সৃষ্টি করা, और लोभ सृष्टि करने का, यही है स्वभाव कृष्ण प्रेम। पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड, और गिव मी मोर, और श्रवण करेंगे, और कीर्तन करेंगे, यही चाहता है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण जी, कल भी प्रभु के प्रवचन में श्लोक आया था। साउंड नॉट क्लियर। हरे कृष्ण, अभी ठीक है? ओके। भक्ति में जो भक्ति का जो प्रेम है वो एकदम समुद्र के समान है, जिसका एक बिंदु पूरा तीनों जगत को प्लावित कर सकता है। हरि यस। अभी एक श्लोक आया था। কারোরও চিত্তে যখন ভগবত প্রেমের উদয় হয়, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে কখনো ক্রন্দন করেন, কখনো হাসেন,
কখনো গান করেন এবং কখনো উন্মত্তের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেন। তাৎপর্য এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত শশী ঠাকুর গোস্বামী বলেছেন যে ভগবত ভক্তিবিহীন মানুষেরা কখনো কখনো প্রেমের এই সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে কৃত্রিমভাবে তা হাসে, কান্দে এবং উন্মত্তের মতো নৃত্য করে, কিন্তু তাতে তারা কৃষ্ণ ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করে না। हाँ, तो बाहर का आदमी भी ये सब कभी कर सकता है, रोता है एक्सेट्रा, लेकिन ये तो जस्ट आउट ऑफ स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका मतलब কিন্তু তাতে তারা কৃষ্ণ ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করে না। পক্ষান্তরে স্বাভাবিকভাবে যখন দেহে ভগবত প্রেমের লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখন এই সমস্ত কৃত্রিম লোক দেখানো বিকারগুলি পরিত্যাগ করতে হয়। तो हो सकता है कोई बाहर का व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शन करना चाहते हैं कि कितना महान भक्त है, तो थोड़ा इसे अष्ट सात्विक विकार फॉल्सली दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वही श्रील भक्ति सिद्धांत शशী ठाकुर बोल रहे हैं। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় অনুভূতি থেকে হাস্য, ক্রন্দন ও নৃত্য আদির মাধ্যমে যে প্রকৃত আনন্দময় জীবন, তা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির মার্গে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত তারাই এই স্তর প্রাপ্ত হন। হরি बोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, धक्का देकर नहीं। जो स्वतःस्फूर्त भावे भगवान का सेवा में नियुक्त होता है उसको ये लाभ मिलता है, नेचुरली, आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, स्वाभाविक भावे, स्वतःस्फूर्त भावे। स्वतःस्फूर्त का इंग्लिश क्या है? स्पॉन्टेनियसली जो भगवान का सेवा में नियुक्त रहता है उसको ये चीज अनुभूति मिलेगा। इतना बड़ा मोटिवेशन श्रील प्रभुपाद बता रहे। हिंदी में क्या लिखा है इसका? वास्तविक आध्यात्मिक हंसी, रोदन तथा नृत्य द्वारा प्रकट होने वाला वास्तविक आनंदमय जीवन कृष्ण भावना में तो वास्तविक प्रगति के लक्षण है। ये लक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्वतः लगा रहता है। स्वतः लगा रहता है, स्वतः लगा रहता है, मतलब तो कंटिन्यूअस लगा रहता है। नहीं नहीं, स्वतः मतलब सेल्फ, विदाउट एनी, मतलब खुद ही अपना इच्छा से, वॉलंटरी। लेकिन स्वतःस्फूर्त माने तो स्पॉन्टेनियस ना, कि स्वतःस्फूर्त क्या क्या है? स्पॉन्टेनियसली, इच्छा से, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, माने अपने इच्छा से, स्वेच्छा से। स्वतःस्फूर्त, जैसे स्वयंभू होता है वैसे स्वतःस्फूर्त और आगे वर्ड की इंद्राणी माता जी, श्रीवास प्रभु এখানে তো বলা যায় যে অহেতুকি। স্বতঃস্ফূর্ত মানে কি? নিজের থেকে আসে, सेल्फ डिजायर, আপনি আসে। নিজের থেকে। ওকে, ইংলিশে কি লেখা আছে একটু বলুন না। इंग्लिश में स्वतःस्फूर्त। अभी पूरा पूरा हिस्ट्री मत पढ़िए, जो चीज हाँ, मांगे नहीं। उतना ही बोलिए। हाँ। the real symptoms of crying, dancing is स्वतःस्फूर्त को क्या वर्ड यूज किया है? real, which can be achieved by a person always voluntarily engages in the transcendental loving service of the Yes, Lord. yes, okay. Voluntarily. ठीक है, एकदम ठीक। स्वतःस्फूर्त, स्वतःस्फूर्त आई थिंक स्पॉन्टेनियस। एनीवेज, स्पॉन्टेनियस और वॉलंटरी में अंतर है। एनीवेज, अनंतर भगवत भक्तिर वॉलंटरी का बंगाली क्या होगा? स्वेच्छा है ना? वॉलंटरी हाँ, स्वेच्छा है। और स्वतःस्फूर्त माने की स्पॉन्टेनियस। जैसे स्वतःस्फूर्त का उदाहरण होगा, नारद मुनि आकर गोपियों से पूछा भगवान को चरणों की धूली दीजिए आप लोगों का, तब उनका हेडेक चला जाएगा। वो तुरंत चरणों की धूली लेकर दे दी, ये लो। वो है स्वतःस्फूर्त। मैंने वेट नहीं किया, दिमाग में सोचने का उतना टाइम नहीं लिया। एनीवेज, इमीडिएट रिस्पॉन्स, वॉलंटरी एक बार ওটা হলো উইদাউট হেজিটেশন। উইদাউট হেজিটেশন, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক। এনিওয়েজ, আগে बढ़ते। অন্তরে ভগবত ভক্তির বিকাশ না করে যারা বাইরে কৃত্রিম ভাবে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ করে তারা মানব সমাজকে কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।
उत्पाते व कल्पते, मैंने अंदर में है ही नहीं, कुछ खोखला है, भगवान के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन बाहर लोग दिखाने के लिए ये सब करता है। तो मानव समाज को क्या होता है? उत्पात। क्यों उत्पात? क्या कैसे उत्पात करेगा उन लोग? क्यों भ्रमित कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन लोग देख के, उन लोग का देखे, अरे ये तो इतना कुछ ढोंग कर रहा है, अंदर में कुछ है ही नहीं, शायद सब इस्कॉन वाले ऐसे ही है, ऐसे करके पूरा, तो क्या होगा? भ्रमित हो जाएगा मानव समाज। ऐसे करता है, ऐसे ऐसे होता है, लोग पूरा इस्कॉन का नाम लेगा, कुछ भी इस्कॉन का भक्त लोग या सोचिए कोई नौसिखिया भक्त ऐसे कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, बाहर का आदमी देखा तो पूरा वो इंस्टीट्यूशन का नाम ही बोलेगा, इन लोग तो ऐसा ही है। यस पक्कन वो हिंदी में लिखा है, मानव जीवन के आध्यात्मिक विकास में उत्पाद खड़ा, आध्यात्मिक जीवन में उत्पाद खड़ा कर। मानव समाज लिखा है मेरा, तारा मानव समाज है, केवल उत्पाद सृष्टि करे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सोचिए कोई हरिनाम हो रहा है, हम लोग संकीर्तन में निकला है, समझ में आ रहा है नरेंद्र सरोवर प्रभु? सोचिए हम लोग और सोचिए हम में से कोई भौतिक डांस करने लग गया, बल्ले बल्ले वाला, ऐसे वाला कोई डांस करने लग गया। माय पॉइंट इज, हरिनाम हो रहा है तो हरिनाम का स्टेप पे नृत्य करना चाहिए, हाँ या ना बोलिए? जैसे महाप्रभु, जैसे नित्यानंद प्रभु, उनके पार्षद लोग जैसे किया, हाँ ऐसे ऐसे करके हरे कृष्णा ऐसे करके। लेकिन कोई अगर भौतिक जैसे डांस होता है वैसे करने लग गया, तो बाहर बोलेगा ये क्या चल रहा है, मानव समाज को भ्रमित करेगा ना, बोलेगा अरे यहाँ क्या क्या, ये भी तो हम लोग का ही जैसे, चलो हम लोग भी कोई पारा का, चलो वो भी सब अपना डांस शुरू कर देगा। तो जस्ट एक उदाहरण दिमाग में आया, तो उसीलिए क्योंकि अंदर में कुछ तत्व नहीं है, और अभी डांस का मौका आया तो कुछ अपना डांस स्टेप कर दिया, नहीं, वो हम लोग को इससे दूर रहना पड़ेगा। जैसे कभी कभी कोई भक्त बहुत भाव विभोर हो गया, उनको आप माइक पकड़ा दिया और वो फिर कोई एक भजन करिए, फिर वो कोई भौतिक बॉलीवुड का गाना जहां कृष्ण का नाम में कुछ है, वो वाला गाना कर दिया, हाँ, तो उससे हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। यस बोलो। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आप बोले, हम कुछ भक्त लेके यहाँ गया था, मैंने मायापुर, वो तो बिहारी लोग था, और वो लोग को मैंने वाइफ भी, वो कभी डांस नहीं किया कभी भी। मायापुर वो लोग को ऐसे भी होता है कि गांव में कहीं नहीं देखा है कीर्तन मेला। तब हम वो लोग को लेके गया था मायापुर में, संध्यार्थ में, बस वो पुरान माता जी लोग के साथ में पूरा डांस करा हम लोग, जो मेरा साथ था वो प्रभु जी, वो भी खोजने लगे, मेरा बीबी कहाँ है, बीबी कहाँ है, बोले बीबी कहाँ है, तो कहीं हरा जाएगा ना, मिलेगा। तो हम चारा दिन खोजने लगा, देखा कि माता जी के साथ, देखो तुम्हारा बीबी देखो, लेकिन कभी जिंदगी में नाचता नहीं यार। वो बाद में जैसे हम लोग के पास आया, इतना आनंद है कभी हम देखा नहीं। मैंने ये भाव है, ये मैंने जो कीर्तन कर रहा है वो भाव में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। नहीं, अगर ये तो अच्छी बात है, आपने उदाहरण दिया कि इनका वो भगवान का भाव आ गया तो अच्छा है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपने उदाहरण दिया कि कोई बाहर का व्यक्ति पहली बार आया लेकिन वो पकड़ लिया, मैंने वैष्णव सिद्धांत को पकड़ लिया और वैष्णव डांसिंग का स्टेप भी पकड़ लिया, और ऐसे होता है क्योंकि हो सकता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत अच्छा स्तर पे छोड़ा था भक्ति, तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने भी जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे कीर्तन करने लग गया, डांस करने लगे, तो अच्छी बात है, अच्छा लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी आकर वैष्णव बनने का ढोंग कर सकता है, इसीलिए हम लोग को सतर्क भी रहना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है ना। यस पंकज प्रभु, क्लास है प्रभु। और एक श्लोक कर लेते हैं 89-90। शेद कॉम्पो तात्पर्य वाक्य अभी तो 88 का प्रभु पढ़ लिए थे, तो अच्छा हो गया, ओके। हाँ हो गया। शेद कम्पो रोमांचस्तु गद गद बई वर्ण
वेदकंप रोमांचश्रु गद गद वैवर्ण्यम् উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष धन्य এত ভাবে প্রেমা ভক্ত গণেরে নাচায় এত ভাবে প্রেমা ভক্ত গণের নাচায় কৃষ্ণেরও আনন্দ মৃত সাগরে ভাষায় কৃষ্ণের আনন্দ মৃত সাগরে ভাষায় ভালো হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ ভালো হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ তোমার প্রেমেতে আমি হইলাও কৃতার্থ তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ ইয়েস বঙ্কিম প্রভু হরে কৃষ্ণ হরি বল ধন্যবাদ প্রণাম প্রভুজি ডান্স ইচ্ছা করে হয় না মন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নেওয়া হয় ততক্ষণ ডান্স হয় না ডান্স যখন শুরু করবেন অটোমেটিক এক্সট্রা একটা পাওয়ার এসে যায় মন থেকে যখনই কোনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিংবা বা ভারতীয় রাধারানীর কথা যখনই আসবেন তখনই ডান্স শুরু হবে অটোমেটিক আপনার শরীর সঞ্চালন হবে মানে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না যখনই আপনার প্রেম আসবে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না মানে আপনাকে মানে পাহাড় আসবে প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনার মুভমেন্ট হতে শুরু করবে এবং যখনই আপনি ডান্স শুরু করবেন তখনই আপনার হবে একটা আলাদা শক্তি আপনাকে যোগাবে আর সেই শক্তির সঙ্গে দেখবেন আমার চোখের মধ্যে একটা ভাব একটা মানে কোনো জায়গায় অশ্রু এসে যায় তো অতটা ভক্ত আমরা হইনি যদিও এসে যায় কিন্তু অটোমেটিক ডান্স এমন একটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাওয়ার দেয় যে আপনাকে আপনার শক্তিতে আপনি নাচেন না এক্সট্রা পাওয়ার দিয়ে দেয় যার জন্য নাচার ডান্স করার জন্য হরে কৃষ্ণ প্রভু হরে কৃষ্ণ হরি বল Yes, আমরা একটা ডান্সের টিচারও খুঁজছি এলোপাথারি ডান্স নিয়ে কি হবে প্রভুজি আমরা তো বুড়ো লোকের আবার ডান্স কি আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি अरे प्रभु का डांस प्रभु कंटिन्यूअस कितना देर तक डांस किया हम लोग देखा है ओह हाँ 3 घंटा कर सकते हैं हमको इतना एनर्जी है 3 घंटा डांस हम कर सकते हैं एट ए ग्लैंस हरे कृष्ण हरि 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 भगवान इतना पावर देता है हमें महाप्रभु का बात जब भी किसी को बोलता है तखन ही मेरा हम ठीक से बोल नहीं सकता मेरा आंखों में आंसू भर जाता है आंख में हम किसी को क्लियरली महाप्रभु बात बोल नहीं सकता आंसू भर जाता है आंख में ठीक से क्लियर बोल नहीं सकता है बहुत आदमी जगह बोला है बहुत प्रवचन में बोला है लेकिन हम बोल नहीं सकता है जब भी बोलता है तभी आंखों भर जाता है मेरा हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरि बोल এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী পদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি जय कविराज गोस्वामी की जय श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु जी जय